Assalamu alaikum, Nazreen Hazrat, Namaskar, Sat Shri Akal, and adabers. आदाब अर्ज है Adabers. आदाब अर्ज है आपको और आपके मतलब अहलो ये अवाल को। जब अदाब मतलब वो करते हैं वो तो उनको कभी वो एक्सीडेंट नहीं होता कि उंगली जो है वो आंख में चली जाए या नाक आंख में में चली और जगहों पे चली जाती है। मतलब यहाँ से वो नीचे से आ रहा होता है ना। ओ शिट यहाँ से आता है ओ आई मीन oh sorry हाँ वहीं से आता है, वहीं से sorry वहीं से आता है। हाँ आ यानी उसमें आ दाब, यानी कि आ आके दाबो, मुझे दबाओ। आ दाब आ आदाब, आदाब। वैसे आदाब अर्ज है हमें कहना चाहिए हमारी पाकिस्तानी टीम को। पहले तो ये सिन ड्रीम्स के बारे में तो बात कर लें। Oh yes, Senate dreams are. Let me see. I'm going to point it. No, you put your fingers. I down. always put my fingers up. Put your finger where it belongs. Put it in my backsides. ये जो है ना, ये हमारे स्पॉन्सर हैं सिने ड्रीम्स मीडिया। कभी इनको भूलिएगा मत। और उसके नीचे जो दो ये है ना, ये इन दोनों को, ये दोनों हैं, इनको मत भूलिएगा। ये क्या कर रहा हूँ यार? It's very difficult, yeah. But we want to thank our sponsor, Cine Dreams Media Limited, for sticking with us for so long and always backing us and supporting us and 100%. And living the dream with us. And giving us the opportunity. This platform has given us this opportunity for us to express our all views. Kinds of stuff that you guys are hopefully being entertained by. Our strongest views about the strongest matters that pan across the entire globe and the universe. And universes, multiverses. तो बहरहाल मैं अपना आदाब और अपना क्या कहते हैं उसको, there's something अपना क्या कहते हैं वो जो होता है, वो जो आप बिछा देते हैं, नहीं, खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो मैदान में लड़ते रहे और सिर्फ 240 रन बनाए उन्होंने। लेकिन वो मेरे ख्याल से एक दूसरे से लड़ रहे थे मेरे ख्याल से। I think they were not fighting with the other team. I wish we could show you some clips of the interviews, the post and pre-press releases that our captain gave. क्या अंग्रेजी बोलता है यार वो? नहीं, वो अंग्रेजी नहीं बोल रहा था। वो कोई language नहीं बोल रहा था। I think he was speaking something that was code. I think we should play some of those clips because he's gone viral with his English. He can't go viral with his performance. No, you say all time, sometimes you say nothing, then you say something, and we lost 40 runs because the 40 runs because you say, but I don't want to argue. It's okay. Next question. No, we don't know about the project that we are working on, the pipelines and the. पता नहीं कहाँ pipelines के ऊपर चला गया वो शायद बात कर रहा हूँ, वो जो पाइपलाइन बिछने वाली थी फ्रंटियर पे हमारे सिंध और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज नहीं यार, वो ग्वादर में वो मेरे ख्याल से जो प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, उसको याद आ गया। अरे यार पाइपलाइन तो रह गया हमारा। रिपोर्टर्स एक दूसरे को देख रहे हैं and you hear birds chirping and crickets chirping. It's funny that reporters keep asking the question. They don't care. Yeah, they don't. They're doing that on purpose because they're entertained just like we are, man. I think he should just constantly just give press conferences at the end of every match. किसी ने उससे सवाल कुछ पूछा, उसने कहा I don't know what question you are asking, but I don't think you should ask me the question because the question is not that good. I remember that one. It took him 30 seconds to say that. He could have just said, not good question. He had to start from the start. The commentator continued with his line of questioning. वो भी ढीठ का बच्चा नहीं, वो यार वो जानबूझ के कल तीली लगा रहे हैं यार. They're having fun. He's entertaining, man. And quite frankly, and honestly, man, look, I think everybody should have fun with them. Yeah. Everybody should. And the people who do have fun with them are the 11 Indian players. Yeah. विराट कोहली जो काफी दिन से फॉर्म ढूंढ रहे थे, वो जैसे पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलते हैं उनको फॉर्म वापस आ जाता है। ऐसा ढूंढा कि बस अभी गुम नहीं हो सकता। हाँ, वो जब फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होते हैं ना, तो वो फोन करते हैं पीसीबी को, यार एक मैच इनके साथ करवा दे तू मेरा, ताकि मैं अपना फॉर्म वापस ले आऊं। एंड एवरी टाइम देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, विराट कोहली स्टैंड्स अप एंड परफॉर्म्स। यार तुम्हें नहीं लगता कि there's some sort of a contract is written between them or there's some sort of an obligation that's been given to? अब तो ये लगने लगा है क्योंकि विराट is basically Pakistan's hero, man. He is. And people love him. I actually, me too. Obviously, when I watch Pakistan India, I want Pakistan to win. It's a क्या कहते हैं, patriotic national. जो भी है, I mean, of course, man. विराट जो है ना, he's an amazing human being. Yeah. And as passionate and as aggressive he can become on the field. Yeah. Off the field, he's an amazing persona. No doubt. Hats off to him. मतलब
hats off या pants off to him. इतना पसंद है हमें कि pants ही off कर देंगे तो ऐसा है कि बहरहाल आप कुछ कह रहे थे यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं हाँ यहाँ हमारे टोरंटो में ये टोरंटो में बस अपने इलेक्शंस होने वाले federal election and they were trying to nominate a candidate usually there's candidates within the party और उसमें फिर 500-600 लोगों से कहते हैं कोई आओ and pick your favorite candidate and then they decide यकीन करें नाज़रीन और हजरात Yeah. it was 10,000 लोग आए वो हाँ ये you listen anytime that you have an election in Brampton don't worry about turnout man because we had 10,000 people out there for this election and then you know when you get that many people you get fights people drunk arrests lawsuits and that's exactly what happened that night भाई ब्रैम्पटन में लोग निकलते ही इसलिए ताकि वो हाँ फाइट्स करें करेंगे और ये कोई it's not a bad thing it's a pastime it's a hobby I think that's the best यार way मैं to बोर हो रहा हूँ सी मैंने और चल आओ जाके हाँ, कीता सी I butchered the Punjabi Yeah, language let's not in, do that, in man. 10 seconds. There's people watching, and you know they're like, "What the hell was that language?" What was लेकिन that यार language? we have to give another खराज तहसीन I guess Yes. to Punjabis. These guys wear their hearts on their sleeves and their braveries on their foreheads, in their pagdis or in their whatever they wear. Whatever they're wearing, They man. are क्या चलते फिरते dripping with the chivalry, bravery. क्योंकि मैं लोगों से ये कहता हूँ आजकल कि जिस तरह ट्रम्प को चाइना से पंगा नहीं लेना चाहिए no thief in the GTA especially in the Brampton area should take panga from Punjabis. That's an interesting segue. Beautiful segue. I think we're going to show a clip to you guys right now. watch this and then tell us what you think. तो आपने देखा आपने ये इसको कहते हैं स्ट्रीट जस्टिस ये स्ट्रीट जस्टिस है ये और वैसे अगर आप इतने स्टूपिड है इतने पागल हैं आप कि आपने उस दुकान में आप जाएंगे जैसे किसी की दावत पे आए हुए हैं आप और वहां से जी शुक्रिया बहुत वो कितने आराम से अपना काम कर रहा था ये No, but to his credit, he's used to that, man. वो जहाँ भी जाता होगा, he must be doing it everywhere. लेकिन उसको ये नहीं समझ में आया कि we're gonna thief around. And then he realized, he goes, "Yeah, man, you guys are crazy, man." बेचारे को 29 फेटियां पड़ी हैं. Was it 26 or 29? 26 or 29. I lost count. And the only reason the सरदार जी हमारे प्यारे जो भी सरदार सिंह साहब थे पगड़ी उतरने लगी यार वो just because और अगर उन्हें just सोचें अगर वो ना उतरती तो अभी तक पिट रहा होता वो तो ईआर में पहुंच जाता हो सर वो मतलब बात ये है यार कि at the end of the day Abdullah you know we've heard a lot of backlash about the Brampton area about Desis about brown people about Indian people in you know the influx or they call it the infestation or whatever. You want to go out there and tell them that in their face? Go do it. I dare you to go do that in Brampton and say the shit that you guys say online, on TV, within your friends. Go do it over there in Brampton and see what happens to you. मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी दुकानें हैं या अपने घर में भी सिक्योरिटी कैमरास वगैरह मत लाएं. Just have a Punjabi guy at the front door. कोई नहीं हिम्मत करेगा अब इस वीडियो के बाद तो कोई भी नहीं. बिल्कुल सही कह रहे हो. गोरा हो या पीला हो या वाकई सही कह रहे हो यार तुम. मतलब हम कालों का मजाक नहीं उड़ा रहे लेकिन this guy must have he looked like a pro. No, he was nonchalant. भर रहा है अपनी ट्रॉली नहीं थी वो. लेकिन अब्दुल्ला तुम जरा सोचो कि how is he a pro man? He was just walking around casually. Aren't pros a little bit more discreet? He was oozing with confidence. आराम से वो शेल्फ भरता रहा उसने कहा यार मैं अभी भरूंगा. कॉन्फिडेंस ऐसे उसके पिछवाड़े से निकला कि अभी बहुत कुछ निकल रहा होगा उसके पिछवाड़े यार 25 यार उसके वो पैंटीज चित्तर पड़े यहाँ चित्तर पड़े लिट्रॉल हो गई लिट्रॉल. Bharal, I feel for that poor fellow. I know my your heartfelt black friend. मतलब there's no shame in saying that. Well, I mean, क्योंकि काले जो हैं खुद अपना मजाक खुद उड़ाते हैं. नहीं लेकिन ये देखो African Canadians also have a lot of pride. They have a lot of pride. No, all Africans across the world. All around the world. I mean, they love making fun of themselves. That's because they're confident. I'll tell you something. They have no complex. मैं आपको बताता हूँ मैंने एक क्लिप देखा कुछ दिन पहले.
उसमें एक अपना अफ्रीकन अमेरिकन था, वो 5 गोरों के साथ बैठा हुआ है, and he's telling them the amount, or not the amount, the kind of racist stuff he's heard over the years. अगर वो क्लिप मिल सका तो मैं जरूर शेयर करूंगा, but these are his statements that he's heard over the years. So people have called him, मतलब उसको ज़ाहिर उसका रंग का मजाक उड़ाते हैं, उन्होंने कहा you look like under the bed, because under the bed थोड़ा डार्क होता है ना, इसलिए. You have no bright ideas. Okay, the difference between you and midnight is 11:59. Oh shit. When God said let there be light, you were out of town. Oh. और ये वाला सुनिएगा please, ये वाला सुनिएगा. Somebody told him, you need to wear white gloves before you eat chocolate, else you will eat your own hands. Oh shit. Stevie Wonder sees you all the time. What about Abdullah in the dark, man? I mean, you know, you make sure that if you're in a pitch dark room, at least smile so we can see your teeth. Because otherwise we can't, you know. वैसे teeth उनके बड़े सफेद होते हैं. Oh, that's what I mean. Maybe it's the contrast. It's yeah, but I mean, even in a dark room, Abdullah, if we're smiling, I mean, but they can probably still see us a little bit. Yeah, they do have very sparkly and white teeth. Very hygienic. They're very hygienic and they're very. Maybe it's all the chicken they eat. It's possible, a lot of protein. प्रोटीन जो है ना आपके दांतों को सफेद कर देता है. हम तो हर वक्त ये नाने खाते रहते हैं. वो ड्रम स्टिक्स अपने वो दांत साफ करते हैं अपने. ठीक है ना? बहरहाल, that's all we have time for. हमें मार पड़ने वाली है बाहर जाके. मैं तो चाहता हूँ यार, मिसिसागा है. मैं तो चाहता हूँ और ब्रैम्पटन में पढ़े, ताकि होश ठिकाने आ जाएं. We've got a death wish, man. That's the problem. तो हम ब्रेक पे लेंगे, उसके बाद हमारा अगला सेगमेंट देखना मत भूलिएगा. बहुत अच्छा सेगमेंट है. बहुत अच्छा सेगमेंट. बहुत अच्छा सेगमेंट है. मैं तो खड़े होके मैं वो तालियां. I was giving a standing ovation out there. Yeah. We love that segment. People are loving that segment. Watch it after this break. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स. फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut aala chai, aala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय. कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय. हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada. Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Chai Social. 100%. Everybody loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Kalar transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. एक कतीन. ए मिली, तू क्या कर रही है इधर? ये कतीन क्या कर रहे हो?
ब्लैक कर रहे हो तुम? तू चुप कर, अपन तेरे से ज्यादा जानता है क्या? ये फिल्म लाया ना तेरे लिए नहीं है, छोड़ दे इसको। हाँ तो तुम सब कुछ जानते हो और मैं कुछ नहीं जानती। अरे अपन पब्लिक है। मुन्ना भाई नहीं, मुन्ना है, मुन्ना। मुन्ना भाई को कोई और है, आएगा बाद में। That was good. चलिए अभी इसको यहीं रोकते हैं। Hey, hi everybody. So this is like again we are here with our another segment of Light Camera Classics. और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई लोग। क्या लेके आए हैं? रंगीला। एक पैसा वसूल मूवी जिसके बारे में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। सो अभी तक हम बात करते थे बहुत ही रोमांटिक क्लासिक मूवीज लाइक इन अ प्रीवियस एपिसोड्स वी डिड डीडीएलजे, मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, जो रोमांस, परिवार और इन सब चीज के लिए फेमस है। पर आज हम बात करने वाले हैं, दो इट इज वन ऑफ द रोमांटिक बट आई वुड से इट्स नॉट अ क्लासिक, इट्स अ कल्ट है और इसने बहुत से ट्रेंड्स थे जो सेट किए थे उस जमाने में। बिल्कुल। सो आज अब मैं चाहूंगी आप पूरे एपिसोड में क्यों नहीं मुन्ना बन के बात करते? अरे बड़ा मुश्किल है। यू आर डूइंग वेरी गुड। आई डोंट नो मैं मिली के किरदार में आपके साथ कितना जस्टिस कर रही थी बट आई होप नहीं बीच में मुन्ना आता रहेगा। ठीक है, तो हम चाहेंगे बीच में मुन्ना और मिली आपसे मिलते रहे। बाकी कमेंट्स में आप जरूर करके बताएं कि आज आपको मुन्ना और मिली के ये किरदार या जो हमने लुक आपके लिए क्रिएट किया है वो आपको कैसी लगी। हाँ, तो आपसे मैं पहले पूछना चाहूंगा मिली जी, बल्कि शिल्पा जी, कि जब आपने फिल्म देखी तो उन दिनों आप कहाँ थी, क्या माहौल था, क्या विचार थे आपके इस फिल्म? मैं बहुत छोटी थी, मैं हार्डली लाइक ये मूवी 1995 में ये मूवी आई है और आपको शायद याद भी नहीं होगा ये मूवी जब हम डीडीएलजे देखने वाले एरा में थे, उस जोन में थे, उस टाइम पर ये मूवी रंगीला आई थी। एंड मुझे याद भी नहीं है, मुझे डीडीएलजे याद है कि मैंने तभी देखी थी बट रंगीला आई गेस शायद मम्मी पापा ने हमें देखने ही नहीं दी थी। इट वाज लाइक वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। जिस तरह के इसमें सीन्स थे, म्यूजिक था, जिस तरह की स्टोरी लाइन थी, जो तो क्यों इस मूवी को एक कल्ट कहा जाता है तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि स्टोरी लाइन देखी जाए तो बहुत ही सिंपल स्टोरी थी। 3 लीड स्टार कास्ट थी, हमारे आमिर खान, मुन्ना, उर्मिला मातोंडकर, बड़ी प्यारी एक एस्पायरिंग एक्टर के रोल में मिली और एक हमारे माचो यंग मैन, हम सब उस समय में बहुत प्यार करते थे उनसे, जैकी श्रॉफ। बहुत ही अच्छे अवतार में वो हमें नजर आए हैं जिस तरह से उन्होंने हमें दिखाया। तो कुछ ऐसी चीजें कि डीडीएलजे के साथ जब ये मूवी आई तो वो एक क्लासिक रोमांटिक आइकॉनिक मूवी बन गई। एंड व्हाट वाज द थिंग्स जिसने रंगीला को एक कल्ट मूवी बना दिया। तो उन चीजों के बारे में मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए क्योंकि स्टोरी हमें सब पता है। सबसे पहली चीज जो मैं बताऊंगी, नहीं, एक तो मैं सबसे पहले अपना तजुर्बा बता दूं। जब मैंने ये फिल्म देखी तो उन्हीं दिनों डीडीएलजे भी देखी थी, उसका भी खुमार छाया हुआ था कि एक रोमांटिक फिल्म है जिसमें बेतहाशा रोमांस और अलग किस्म से जो बहुत पसंद किया गया। लेकिन फिर रंगीला आई तो मैं खुद उस वक्त शायद ऐसी 18-19 साल का होऊंगा, तो वही सब लड़कों का हमारा था कि उसी तरह गेटअप करेंगे, उसी तरह बोलेंगे, स्कार्फ लगाएंगे, इस तरह लॉकेट लगाएंगे, टोपियां पहनेंगे। तो वो उसने एक फैन फॉलोइंग बना दी थी आमिर खान ने सिर्फ अपने एक रोल के थ्रू। नहीं, मैं बताना चाहूंगी कि इस रोल के लिए आमिर खान ने इतनी मेहनत की। हम ऐसे ही हमारे आमिर खान को परफेक्शनिस्ट नहीं कहते। इस रोल के लिए वो बाकायदा कुछ दिन उस टपोरी और स्लम एरिया में वो उन लोगों के साथ रहे जस्ट टू गेट इनटू द कैरेक्टर। और क्या कैरेक्टर निभाया है, मतलब मैं आज भी मुन्ना भाई के वो डायलॉग्स और ये लुक्स, ये तो चलो ठीक है आपने भी बनाई एंड मैं आपको भी सल्यूट करती हूँ। आपका जरा स्कार्फ खुल रहा है, आप प्लीज उसे अच्छे से बात। अरे मुन्ना का तू फिक्र ना कर, मुन्ना संभाल लेगा सारा कुछ। मुन्ना संभाल लेगा। तो जिस तरह से उन्होंने ये किया, मैं कह रही हूँ शायद ही, मतलब अब मैं किसी और को उस रोल में इमेजिन नहीं कर पा रही। हमारा मुन्ना एकदम हटके था और क्या डायलॉग डिलीवरी थी, हा हा, जिस तरह से उनकी एक स्माइल हंसते हैं, द वे ही वाज जस्ट डिलीवरिंग हिज डायलॉग्स, इट वाज कमेंडेबल। और उन दिनों एक और चीज मुझे याद है, वो जमाना था कि सारे हीरो जो थे ना हर वक्त चॉकलेट रूप में रहते थे, क्लीन शेवन, कोई एक बाल भी नहीं। इसने ये बहुत दिनों बाद एक ऐसी लुक आई थी हीरो के बाद, मेरा ख्याल है जैकी श्रॉफ के, खैर वो उसकी तो मूछें रहती थी लेकिन स्टबल वाली लुक, ऐसे थोड़ा आवारा टाइप टपोरी। तो उसके बाद से दाढ़ी रखना जो है ट्रेंड बनता गया ऐसा। और आजकल तो आप देखें तो हर छोटा बच्चा दाढ़ी उगा के कर रहा है। आजकल काफी बियर्ड का ट्रेंड है, बट उस समय में तो आमिर खान की जो लुक थी, जो डिस्ट्रेस लुक हम कहेंगे, जैसे आपने आज बखूबी हम देख सकते हैं, हम आज एक आमिर खान देख रहे हैं आपके अंदर, उसका सेहरा भी इन्हीं के सर जाता है। तो बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपना वो किरदार निभाया। तो आज कुछ ऐसी 5 चीजों के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने रंगीला को एक स्टेप आउट, एक कल्ट, एक डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी बना दिया। तो उसमें सबसे पहले जो रोल अदा किया था वो किया था म्यूजिक ने।
ओहो। पहली बार जो AR रहमान ने जो इस मूवी में स्कोर दिया, जो म्यूजिक स्कोर उन्होंने दिया, जो गाने बनाए हैं, जो जिस तरह का संगीत उन्होंने पेश किया है, मैंने आज तक ऐसा संगीत नहीं सुना। और आज भी आप मानेंगे, अगर आपके बैक ऑफ द माइंड जब वो धुन आती है, मतलब देयर इज वन सॉन्ग व्हिच इज वन ऑफ माय फेवरेट ऑफ दिस मूवी, प्यार ये जाने कैसे। क्या कह दिया, मैं कह रही हूँ, मेरे दिल की धड़कन, एक बीट हिलती है जब वो गाना आता है, और क्या म्यूजिक था और किस तरह के उसमें स्कोर्स थे। मेरे ख्याल है ये सुरेश वाडकर साहब ने गाया था। जी बिल्कुल। हाँ, उनकी आवाज वैसे मुझे हमेशा से बहुत अच्छी, बहुत सुरीली, मधुर आवाज जिसको कहते हैं हिंदी में। बहुत कम उन्होंने गाने गाए, लेकिन जब भी गाया उन्होंने, और इस गाने में तो कमाल कर दिया। ये दिमाग को में छा जाने वाला गाना है। तो जब आरजीवी हम इनके डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा जी, मैं बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत लंबा नाम है, बोलते बोलते हम लोगों का भी थोड़ा टाइम निकल जाएगा, तो हम बोलेंगे आरजीवी। तो आरजीवी ने जब AR रहमान को इस मूवी के लिए साइन किया, वो एक बहुत बड़ी विजन थी। मतलब वो टाइम नहीं था, वो टाइम था आपके आनंद मिलिंद और अलग म्यूजिक डायरेक्शंस का, नवीन श्रवण एंड ऑल। पर उस टाइम पे अगर इनको साइन करना, इनको लेना, जो आज अभी तक ऑफ बीट तमिल मूवीज में अपना म्यूजिक देते थे, ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल साबित हुआ। एक एक गाना, मतलब ऐसे चार्ट बस्टर्स थे, ऐसे लोगों ने पसंद किया उनका म्यूजिक। तो जब पहला गाना उन्होंने उसमें साइन किया, उन्होंने पहला गाना बनाया हाय रामा ये क्या हुआ, एंड राम गोपाल वर्मा आरजीवी वाज ऑस्ट्रक बाय द सॉन्ग। वो गाना ही है सर, वो इतना खुश हुए। पहले उन्होंने अनु मलिक को इस मूवी के लिए साइन किया, उन्होंने फौरन अनु मलिक को से हटाया। अच्छा, तो एक और अपने प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे एट दैट टाइम, उन्होंने वो प्रोजेक्ट अनु मलिक को दिया और AR रहमान को इस मूवी के लिए साइन किया, और रेस्ट हम सबको मालूम है। मैं कह रहा AR रहमान साहब भी शायद जो हॉलीवुड कह रहा हूँ, बॉलीवुड में जो उनकी मेन एंट्री थी, वो शायद रोजा और रंगीला इन्हीं फिल्मों से हुई। हाँ, तो रोजा और रंगीला में उन्होंने जो स्कोर दिया था, दैट वाज टेकन फ्रॉम द तमिल। हाँ, तो लेकिन ये ओरिजिनल का बॉलीवुड ओरिजिनल स्कोर था, इसीलिए इसके बारे में हम ज्यादा बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये उन्होंने पहला ब्रेक था। और जो आरजीवी ने उन्होंने दिया, और क्या गाने और क्या रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए उन्होंने। बिल्कुल रिकॉर्ड ब्रेक म्यूजिक था। आज भी वो म्यूजिक इतना लाइवली है। आप आज रंगीला का कोई भी गाना सुन लो, आप याई रे सुन लो, इट्स लाइक सो पॉपुलर। आई एम इनटू दैट गेटअप टुडे। मिली का मैंने वही गेटअप उठाया कि काफी सिग्नेचर गेटअप है, एंड शायद मैं इसके लिए साथ जस्टिस कर पाई। आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मेरे लिए बहुत, चाहे आप झूठ भी बोलें बता दीजिएगा जी। तो दूसरा बड़ा नाम जो इस मूवी से हमें जानने को मिला, वो दूसरे थे हमारे मनीष मल्होत्रा। जिन लोगों को इस मूवी में इस मूवी से मनीष मल्होत्रा ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की, और क्या शुरुआत की। जस्ट इमेजिन, लाइक आप याद कीजिए उर्मिला के वो आइकॉनिक आउटफिट्स, एक फैशन स्टेटमेंट बन गए थे। वो छोटी ड्रेस, वो आपके रंगीला बूट्स, आपकी हैट्स, और आपके एक बीट सॉन्ग में जिस तरह की उन्हें साड़ियां पहनाई गई हैं, प्यार ये जाने कैसा सॉन्ग में उनको जो शिफॉन की प्लेन साड़ीज पहनाई है। आई होप, लाइक आई नो दैट यश चोपड़ा हैज ऑलवेज बीन डूइंग दैट, बट नॉट विद द सेम डिजाइनर। बट जिस तरह की लुक उन्होंने दिखाई, वो बिल्कुल यश चोपड़ा वाली लुक से अलग थी। और हमारी उर्मिला मातोंडकर तो क्या लग रही थी, उस समय की मेरी बहुत ही फेवरेट कलाकार रही हैं वो, मैं बहुत पसंद करती थी। और एक कनेक्शन क्यों है मेरा इस मूवी के साथ, जो इस किरदार था मिली का, शी ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। तो जिस तरह की उसको फिल्में इतनी इंस्पायर करती थी उस समय, अगर मैं अपने आप को याद करूं, दो मैं बहुत छोटी थी, पर जब मैंने रंगीला देखी, मैं अपने आप को बिल्कुल मिली का कैरेक्टर मानती थी। मुझे एक्ट्रेस बनना था। तो अलग बात है कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया, बट मिली की किस्मत अच्छी थी कि उसे कमल जी ने देखा और एक एक्ट्रेस बना दिया, एंड शी वाज वेरी टैलेंटेड। नहीं तो आज भी अगर आपको कोई देख रहा होगा तो यकीनन मुझे रोल जरूर मिलेगा। बहुत बिजी होने वाली है, मैं ये लिख के दे दूं आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनीष मल्होत्रा जी के बारे में हम क्या बताएं कि 27 साल बाद आज वो एक टॉप के हमारे डिजाइनर माने जाते हैं बॉलीवुड के, और क्या उनके कपड़े होते हैं, तो अब हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। इंशाल्लाह कभी हमारे पास भी इतने हो, हम भी एक मनीष मल्होत्रा के स्टोर पे जाएं। अच्छा, इस बात मुझे एक बात याद आती है, जमाने से हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन क्योंकि दिल वाले दुल्हनिया और ये आसपास आई थी, तो फिल्म फेयर अवार्ड्स में आमिर खान और शाहरुख खान का टकराव हुआ था। टकराव मैं नहीं कहूंगी, आमिर खान वाज एक्सपेक्टिंग, लाइक मतलब लोग भी सोच रहे थे कि शायद आमिर को ही मिले। शाहरुख खान की एक रेगुलर लव स्टोरी थी। हमने शाहरुख खान को डीडीएलजे से पहले दीवाना और इसमें रोमांटिक अवतार में देखा है। तो डीडीएलजे वाज अ क्लासिक मूवी और उसे अवार्ड मिला, बट एट दैट टाइम आमिर खान वाज एक्सपेक्टिंग एन अवार्ड फॉर दिस मूवी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें अवार्ड नहीं मिला, एंड दैट वाज द रीजन। उसके बाद वो कभी भी किसी भी फिल्म फेयर अवार्ड्स पे नहीं आए। उन्होंने वो ऐसा स्टैंड लिए जो आज तक उन्होंने 20-30 साल हो गए, इतने साल हो गए। He has never, like I have never seen, I've been
seeing these award shows every 31st night. You know, ये हमारा होता था हर न्यू ईयर ईव की शाम हम लोग घर बैठ के पॉपकॉर्न के साथ अवार्ड शोज देखते थे. तो हमने उस दिन के बाद आमिर खान को किसी अवार्ड परफॉर्मेंसेस में अवार्ड शोज में नहीं देखा. और हालांकि बहुत से अगले अवार्ड्स में कुछ हीरोज ने उनको अपना कहा भी अपना अवार्ड उनको उनको डेडिकेट किया, लेकिन फिर भी उनकी नजर में वो इस किस्म के एक्टर हैं कि इन चीजों की एक ट्रॉफी की अहमियत नहीं. असल वैल्यू जो है वो एक्टिंग इटसेल्फ, परफॉर्मेंस. क्या परफॉर्मेंस है वो तो हम सबको मालूम है. ही इज नोन टू बी अ परफेक्शनिस्ट. अपने रोल्स के लिए, अपनी अदाकारी के लिए वो आज बहुत फेमस है. चलिए आइए फन फैक्ट्स कुछ बताइए. मैं तो इसी का मुंतजर रहता हूँ यहाँ बैठ के. जी बिल्कुल. चलिए आज हम डिस्कस करते हैं हमारे फन फैक्ट्स के बारे में. मैं फन फैक्ट के बारे में बताती हूँ कि इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स जो थे तो वो रियल लाइफ कैरेक्टर से इंस्पायर्ड थे. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अगर आपको ये याद है, इस मूवी में गुलशन ग्रोवर जी का रोल था. उनका नाम है स्टीवन कपूर. स्टीवन कपूर, जो कि वो कहते हैं कि मेरा जो मुकाबला है वो यहाँ के डायरेक्टर के साथ नहीं है, फॉरेन के. वो अपने आप को स्टीवन स्पीलबर्ग समझते थे. सो द नेम इज स्टीवन कपूर. तो उनका कैरेक्टर एक रियल लाइफ आई वुड से फिल्म फ्रेटर्निटी से ही वो कैरेक्टर है. आप गेस कर सकते हैं. एक और डायरेक्टर है जो कि हॉलीवुड के नहीं आपके बॉलीवुड के हैं, तो उसी का किरदार उन्होंने निभाया है. वो हमेशा फिल्मों में अपने आप को ऐसे दिखाते हैं, मेरा मुकाबला इन डायरेक्टर्स के साथ नहीं है, मैं तो बहुत उम्दा और बड़ा कलाकार हूँ. और these यश चोपड़ा और द सूरज बरजात्या, these are not my league. अच्छा. So the director name is शेखर कपूर. अच्छा, राइट. हाँ, उनका वैसा अलग लेवल है. बिल्कुल अलग लेवल है. वो समझते भी ऐसे हैं. तो इसी तरह से उसी किरदार से आपने उस चीज को आरजीवी ने बखूबी वो किरदार को स्टीवन कपूर के किरदार में ढाल कर हमें रंगीला मूवी में दिखाया. द वे ही वाज जस्ट शूटिंग ऑन द स्क्रीन हमें दिखाया कि किस तरह से वो बात करते हैं. इट वाज ऑल शेखर कपूर. आप आज अगर ये मूवी देखेंगे आपको 100% मैं बता रही हूँ बिल्कुल पता लगेगा कि यस एब्सोल्युटली दिस इज स्टीवन कपूर. दूसरा जो मतलब मैं आपको बोलूंगी, ये रियल लाइफ से आपने कैरेक्टर्स उठा के अपनी मूवी में डाल दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है. राम गोपाल वर्मा जी ने इसे स्टोरी में लिया और फिर उसे इतनी अच्छी डायरेक्शन, जो स्क्रीन प्ले, सारा क्रेडिट मतलब इस मूवी का मैं सिर्फ और सिर्फ आरजीवी को देना चाहूंगी. तो दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस मूवी में आपको याद है कि जब मिली हीरोइन बनती है उससे पहले एक और एक्ट्रेस है. शी इज ऑन द सेट एक्टिंग विद जैकी सीन में. ठीक है. तो उसमें क्या था, उसके साथ हमेशा उसकी मॉम आती थी एंड शी वाज जस्ट डिस्टर्बिंग कि बेबी को ये चाहिए, बेबी को ये नहीं करना. एंड शी ऑलवेज लाइक बिकॉज ऑफ स्मॉल थिंग्स शी जस्ट शट डाउन द शूट एंड जस्ट लीव. सो दैट कैरेक्टर इज श्रीदेवी. अच्छा. So in the initial days of Sridevi always accompanies her mom on the set and she has been doing the same thing, same kind of drama, and RGV just showed that in the movie. हाँ, और बाद में जहाँ तक मुझे याद है, श्रीदेवी जब खैर उनकी मौत से पहले अब उनकी बेटी भी जब सेट पे जाती थी वो उनके साथ जाया करती. बिल्कुल जाती थी. यस, आपने बिल्कुल सही पहचाना. परंपरा कायम रखी उन्होंने. तीसरी फन फैक्ट मैं आपको बताती हूँ. आज आप इनकी टोपी देख रहे हैं, देखिए बिल्कुल वही टोपी है. आमिर खान ने ये टोपी एक बार और पहनी है. आप जरा सा दिमाग लगाएं, गेस करके बताएं किसी और मूवी में आमिर खान ने सेम कैप पहनी है. मैं आमिर खान की तरफ सोच के बताऊं. सोच के बताएं. चलिए ये आपके लिए एक सवाल है, दर्शकों के लिए भी है. बिल्कुल दर्शक ये भी अपन को याद नहीं आ रहा क्या. थोड़ा दिमाग में जोर डाल. दिल है क्या मानता नहीं मुन्ना, थोड़ा दिमाग में जोर डाल. आप काफी क्लोज है. दिल नहीं, थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए. ओहो. चलिए मैं आपको हिंट देती हूँ. दो दोस्तों की मूवी है ये, काफी अंदाज अपना. ये देयर यू गो. तो अंदाज अपना अपना में अगर आप अंदाज अपना अपना भी जाके देखें तो देखिए आमिर खान ने ये सेम टोपी अंदाज अपना अपना में उन्होंने जरूर फ्रांस से ली होगी. नहीं, पेरिस से ली होगी. पेरिस से ली होगी. बिल्कुल बहुत ही अच्छी मूवी है. हम कोशिश करेंगे जब हम अपनी रोमांटिक से हटकर किसी और जॉनरे को उठाएंगे तो अंदाज अपना अपना इज अ मस्ट वन. चलिए एक और बताती जाइए. एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दो बड़े नाम जो इस मूवी में एज एन असिस्टेंट हमें दिखे हैं. तो उसमें एक नाम है मधुर भंडारकर. इट्स अ वेल नोन डायरेक्टर. काफी अच्छी मूवीज और काफी डिफरेंट मूवीज बनाते हैं, जैसे कि पेज 3, चांदनी बार. ही वाज द असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ आरजीवी इन दिस मूवी. और आपको वो कहीं सेट पर इस मूवी में दिखेंगे भी, उनकी हल्की सी झलकियां दिखेंगी. और दूसरा मुझे इसमें एक कैरेक्टर है मूवी का जो प्रोड्यूसर है, पीसी. दैट्स ऑल्सो अ रियल लाइफ कैरेक्टर. अब्बास मस्तान के कपड़े और उस तरह की चीजें लेकर इस मूवी में आपने पोर्ट्रे किया है. क्या जबरदस्त फन फैक्ट्स लाए हैं आज आप. मजा आ रहा है. लास्ट फन फैक्ट एंड इट्स वेरी नाइस. आपने अगर ये गाना देखा है, याई रे जोर लगा के नाचे रे, तो आज ये गाना दोबारा देखिए और आपको
एक्स्ट्राज में एक फेमस कोरियोग्राफर मिलेंगे. अच्छा. Yes, he is dancing as an extras behind Urmila Matondkar, and the name is, he's a very well-known choreographer these days, Remo Fernandez. Remo Fernandez. Wow. Like when the just shot goes, it starts. So the first phase, it comes in, and that's Remo Fernandez, and he's been continuously dancing in the extras behind Urmila Matondkar. और देखिए कितने छोटे-छोटे किरदार इन्होंने निभाए हैं, कितना स्ट्रगल किया है. 95 में मधुर भंडारकर was as an assistant director, Remo Fernandez is as a choreographer but as an extra dancer. और उन्होंने अपनी जिंदगी में कितनी तरक्की की है. स्ट्रगल है लेकिन तरक्की भी है. तो मैं जस्ट सल्यूट करना चाहती हूँ इन दोनों अदाकारों को कि स्लोली अपने काम में उन्होंने वो जज्बा लाया, अपने काम में इतनी डेडिकेशन लाई, हार्ड वर्क, और इतना हार्ड वर्क किया, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुंचे, और आज क्या नाम है उनका. हम सब उनके नाम से उन्हें जानते हैं, उनके काम से उन्हें जानते हैं. तो यहीं पर मेरे ये फन फैक्ट्स खत्म होते हैं. तो मिली एक बात बता यार, एक तेरे स्टूडियो में क्या है, इतना गर्मी क्यों है? फैन चालू कर. एसी इज ऑन सर, एयर कंडीशन चालू है. अच्छा, तो इधर घुमाना तो घुमाए. तो बहुत अच्छा किया आपने, प्लीज ये सीन मेरे लिए किया. दिस इज वन ऑफ द आइकॉनिक सीन जो मेरा फेवरेट सीन है. हम सबको पता है, आमिर खान उस रेस्टोरेंट में जाते हैं फॉर टू गिव अ ट्रीट टू मिली, एंड देन देयर वाज दिस काइंड ऑफ सीन अकर्स, एंड ही सेड दैट व्हाट, क्या खाली टेबल कुर्सी पे खर्चा किया क्या, कुछ है नहीं क्या, खाने को ले गया, ये ले गया. सो इट वाज वेरी नाइस द वे ही वाज सेइंग, एंड यू आल्सो डिड जस्टिस टू दिस सीन. थैंक यू सो मच. मजा आया आपके साथ आज बात करके, बहुत. बिल्कुल, मुझे भी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी पसंद आया होगा. यकीनन आया होगा. आपको बहुत मजा आया होगा. तो कमेंट्स में जरूर बताएं अगली कौन सी मूवी के बारे में आपने हमारे से बात करनी है. तब तक अपना ख्याल रखें. अगली मूवी के लिए आप दिल से सोचिएगा कौन सी मूवी होनी चाहिए. प्लीज जरा दिल से सोचिएगा. जरा दिल से सोच के हमें बताइए कि आपको कौन सी मूवी अगली आपके दिल में आ रही है कि आप हमारे साथ बात करना आपके दिल से हमारे दिल तक आए, ताकि हम उसको अपने दिल से पेश करें. तब तक अपना ख्याल रखें. तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते. शब्बा खैर. Take care. We'll be back right after this. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब. आप सभी का स्वागत है मेरे शो पे. मेरा नाम है दक्ष, आप सभी का होस्ट और दोस्त, और मेरे साथ है मेरे बहुत ही अजीज मित्र एजाज. यार एजाज, शो वो तो होता रहेगा, ये बताओ यार, ये चश्मा वश्मा क्यों पहना है? अरे नहीं पूछो यार. अरे बताओ यार, क्या हो गया? अरे इतने साल हमने लड़ाई करी यार, इतने साल हमने लड़ाई करी कि मैच रखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे. मुल्क से बाहर गए, होस्ट होते हुए मुल्क से बाहर गए. अच्छा. और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए. तो अब आप नहीं यार, आज नहीं सहा जा रहा मुझसे, बहुत हो गया यार. यार मैं तो ऑलरेडी आईसीसी टूर्नामेंट के बारे में बात करने वाला, चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में. यार ऐसे मत करो यार, तुम रो मत यार, दिल छोटा मत करो. अब तो तुम्हें आदत हो चुकी होनी चाहिए ना यार. भाई आज हम क्रिकेट पे बात नहीं करेंगे, बहुत हो गया, बहुत. इतनी बेइज्जती सह ली है ना, अब सहा नहीं जा रहा है भाई, अब बहुत हो गया है. तो देखिए आज हम बारिश पे बात करेंगे. आज जो है वो स्टूडियो में बहुत अच्छी बारिश हो रही है. आपका इस बारे में क्या कहना है? बस आप आंसू बहा रहे हैं हमारी बारिश में. तो इतना इंटरेस्टिंग माहौल है. मैं इंडिया से, ये भाई साहब पाकिस्तान से. अब मैं ये देख रहा था कि इन लोगों को आदत हो चुकी होगी हार हार के. भाई आदत तो हो गई. यार मुझे एक बात बताएं, इन्होंने 18 साल से लड़ाई की चैंपियंस ट्रॉफी अपने पाकिस्तान में कराने के लिए, ठीक है. फिर उसके बाद 2-2.5 साल तक ये लड़ते रहे कि इंडिया को हम खिलाएंगे, हम पाकिस्तान बुलाएंगे. अब वो भी नहीं हुआ. फिर अपने ही टूर्नामेंट में, जहां के होस्ट हैं आप, जिनसे मैं इसमें जय शाह की बात करना चाहूंगा, बीसीसीआई और आईसीसी के जो चेयरमैन अभी हैं, उनकी मैं बड़ी तारीफ करना चाहूंगा. मेरा ख्याल है मैं चश्मा पहन लूं आंसू छुपाने के लिए. आप अपनी बात कंटिन्यू करें. उन्होंने 12 कितने मिलियन डॉलर खर्च करा दिए उनसे पाकिस्तान से टूर्नामेंट कराने के लिए. सबसे पहली टीम बाहर हुई, वो भी कहां पे, वो भी कहां पे, सुनो, आदत डालो, सुनो, वो भी दुबई बुलाकर. अब पाकिस्तान टूर्नामेंट से 4 दिन में बाहर हो चुका है. अब उसके बाद वो दुबई गए थे और दुबई से वापस घर जा रहे हैं होस्ट के लिए. आप मुझे सिर्फ एक बात बताओ, पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम, श्रीलंका की टीम जिसके ऊपर हमला हुआ, वो पाकिस्तान में खेलते हुए सेफ फील कर रहे हैं. आपकी इंडियन टीम पाकिस्तान में सेफ क्यों नहीं फील कर रही? आप मुझे ये बताओ, उनको ऐसे क्या सेफ्टी इश्यूज हैं? देखिए हमारी टीम की प्रैक्टिस थी होम ग्राउंड के ऊपर, बाहर की ग्राउंड की टीम के ऊपर हमारी प्रैक्टिस नहीं. ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तान में ही खेलते
तो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो पॉलिटिकल, मैं कहूंगा कि वो उसको हम ना बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा, वरना यहाँ पे आवाज के स्टूडियो में मारकाट भी हो सकती है। हंगामे हाँ जी, चैंपियंस ट्रॉफी वापस आते हैं भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में बात ही नहीं होगी, आज बात होगी, आप किसी भी चीज से बात कर लें। आप देखें कनाडा में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी चल रही है। देखिए भाई, हम तो जीते, हम तो बात करेंगे, हमारा तो बनता है। अब देखिए कुल मिला के स्टैट्स पढ़िए, 60 की स्ट्राइक रेट से हमारे रिजवान लिपस्टिक लगा के, और आपके बाबर आजम घंटे का गेम। तो आप बताइए अरे कि जो बात है, पूरा मैच बाबर आजम ने 23 रन बनाए, ठीक है, फिर उसके बाद रिजवान ने मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैच संभाला, लेकिन आप इतना स्लो खेल रहे हैं और कैसे शॉट पे आउट हुए हैं? यार मैं आपको मजे की बात बताता हूँ कि जो बाबर आजम है, उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो आपके विराट कोहली से भी कम है। मतलब विराट कोहली जब अपने लोएस्ट परफॉर्मेंस उस पे होता है तो बाबर आजम जो है वो उसको उस वक्त भी बीट नहीं कर पाता। वो और फिर भी बाबर आजम आश्चर्य की बात यह है कि वहाँ पाकिस्तान में इसको किंग बोलते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता लेकिन भाई अंधों में काना राजा कहते हैं तो जिम्बाब्वे के साथ खेलते हैं, हमारे वहाँ पे थोड़ा इसको जिम्बाब्वर भी बोल देते हैं, और जैसा कि इन्होंने कुछ एक शब्द बताया वो भी बोल अरे देते यार हैं। अफगानिस्तान आप देखें वो बिल्कुल बिल्कुल यार अफगानिस्तान ने क्या खेला है यार भाई, इंग्लैंड की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने गोरो करा दिया, 300 से ऊपर रन बना दिए भाई। और मतलब यार क्या हो गया यार? अच्छा हमारा भाई छा गया, हमारा भाई छा गया। हमको सिखाया किसने अफगानिस्तान को, आप ये बताओ? इंडिया ने। अब भाई पाकिस्तान ने सिखाया अफगानिस्तान को क्रिकेट पूरा, आप यहाँ से देखें। हाँ, मैं इस पे ये बोलना चाहूंगा कि इस समय हुआ क्या, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा जो लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तान की टीम तो हार रही है, और एज एन इंडियन मेरे को बड़ी खुशी होती है देखते हुए, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा दुख होता है कि यहाँ पे क्रिकेट हार गया। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि जो पाकिस्तान की कोर टीम थी इनिशियली, वो क्या थी यार? शोएब अख्तर जैसे, इमरान खान जैसे लोग, इंजमामुल हक, हाँ इंजमामुल हक, है ना। और आज की टीम देखिए, शाहीन लंगड़ा खेल रहा है आपकी टीम से, ठीक है, बाबर आजम, रिजवान, ये सब कोटा से आए हुए हैं। और हंसी की बात ये है कि ये लोग जब एक मैच के लिए ड्रॉप हो जाते हैं या फिर इनको नहीं खिलाया जाता, तो आप ही के न्यूज चैनल पे जाके ये लोग बताते हैं कि यार ये क्या घटिया टीम है। और अगले ही मैच में जब अगले मैच में आप उनको ले आते हैं तो बस वो उनकी परफॉर्मेंस सारी डाउन हो जाती है। हाँ, अगले मैच में जब लेके आते हैं तब वो फिर आके अपनी टीम में बोलते हैं हम सबको यूनिटी से खेलना है, और उसके बाद भी हार जाते हैं। उसके बाद भी हार जाते हैं भाई, यूनिटी से हारते हैं। हम पूरी मेहनत से हारते हैं, हम ऐसे नहीं हार जाते। हाँ जी, हम बहुत मेहनत करती है टीम, पूरा साल मेहनत करती है कि चैंपियंस ट्रॉफी में या कोई भी वर्ल्ड कप होना है उसके अंदर हारना कैसे। नहीं, मुझे लगता है कि इस पूरे मेरे को लगता है कि पूरे पाकिस्तान में मुझे लगता है टैलेंट की कोई कमी नहीं है, क्रिकेट की बहुत बड़ी हार है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से भी माहौल चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का, अगर उन्होंने अभी फिक्स नहीं किया अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर और रिजर्वेशंस को हटाकर, यार पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने एक मकाम बनाया है, वो मकाम वो ऑलरेडी खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अभी उस पे वर्किंग नहीं होगी तो आप सही बोल रहे हो कि इंडिया ने उस चीज को मेंटेन रखा हुआ है। इंडिया जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है तो वो उन्होंने उस चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। हारते नहीं, ऐसा नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम आपकी हारती नहीं, लेकिन जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो इंडिया जरूर जीतता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंडिया से ज्यादा यहाँ पे क्रिकेट को भी जिताना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि कंपटीशन हो, वरना ये मैच तो ऐसा लग रहा था यार प्रैक्टिस मैच है और हम किसी बच्चों सबसे पहली टीम पाकिस्तानी आउट हुई है होम ग्राउंड पे यार, मतलब सच अ शेम यार। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि इसी के साथ मुझे लगता नहीं कि आज हमारे भाई कुछ और बात कर पाएंगे, इतने सदमे में है। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आप हमारा शो देखते रहें। मिलेंगे और तड़कते फड़कते टॉपिक के साथ अगले हफ्ते, तब तक के लिए शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स, हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. आवाज एंटरटेनमेंट और उनकी पूरी टीम जल ला रहे हैं आपके मनोरंजन के लिए ढेर सारे नए प्रोग्राम्स। शोकास्ट, एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें सेलिब्रिटीज, सियासतदान, बिजनेस टाइकून्स और दीगर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से बातचीत भी होगी और मुख्तलिफ मालूमात भी दी जाएगी। फॉरगॉटन, जहां पुराने क्लासिकल गानों को हमारे उभरते हुए सितारे नए अंदाज में
लाइव म्यूजिक के साथ पेश करेंगे। इश्क ममनू, एक दिलकश रोमांटिक टर्किश ड्रामा। लेट्स टॉक, मजाइया टॉक शो जिसमें आप रंग बिरंगे फनकारों का हुनर देखेंगे। लाइट्स कैमरा लाफ, देखिए और खूब हंसिए वायरल और ट्रेंडिंग मीम्स और वीडियोस पर। बच्चों के लिए भी खास प्रोग्राम्स और पेशकश जिसमें शोज और कार्टून्स शामिल होंगे और आप देखेंगे हमारे टॉप शोज एक नई शक्ल और अंदाज में, जैसे कि दो मस्ताने, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड इवेंट्स एक सैटायर कॉमेडी की शक्ल में जहां हंसना बिल्कुल मना नहीं। तकरार लाइव, कनाडा का सबसे मकबूल सियासी शो जहां लाइव कॉल पर पाकिस्तान की सियासत पर आप अपने नजरिए पेश कर सकते हैं। और इन सब के अलावा देखिएगा दीगर दीनी प्रोग्राम्स, मूवीज, स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स और भरपूर नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट ओनली ऑन आवाज एंटरटेनमेंट। आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाज़रीन, welcome back to our show दो मस्ताने presented by Cinedream. Guys, my chair like low. It's not the chair. Oh, stop. It's never the chair. All right. Anyhow, आपने देखा आज हमने बात की फिल्मों पे। हम तो हर बार ही करते हैं, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि we've never asked our co-host, our lovely co-host, for what her favorite movie or one of her favorite movies is. तो आज आप बताइए कि which Bollywood film especially is close to your heart? So the movies that I originally liked a lot, most of the people that are from that era have passed away. Oh. Okay. So for example, Chandni. Oh yeah. What a classic. What a classic. So I'm a huge Sri Devi and Rishi Kapoor fan. Yeah. Obviously, I was like Vinod Khanna, but he was alright to me. But What? Rishi Kapoor and Alright Sri to Devi, you? Yeah, he was alright. He wasn't like Wow. he wasn't like Ronki Vinod Lori and Khanna perfect. was the handsome hunk man of Bollywood. Probably, but I mean, I didn't really care too much. But that's for all him, he but was. He yeah. was never a great actor. His son. He's a very good is actor. an amazing actor. But anyhow, Yeah. speaking of Chandni, what did you like about that movie? About the movie? Yeah. Just the love triangle, I think. And then like there were other things that were really good in the movie too. Obviously the music. Okay, number one, the music was incredible. What was the song that they sang? Sawan ki sound. नहीं वो लगी आज सावन Sawan, फिर वो हाँ, घड़ी that oh one. what a song. No, all the songs. Tere Mere Hoto Pe, that was a Ah. beautiful Oh, song. that was a nice song. Right? And that's still till this day I can listen to it on full blast in my car when I'm driving. True. But I personally am a very big Sri Devi fan and a Rishi Kapoor. Like What? I loved Rishi Kapoor. I don't care. When he died, that broke my Oh. heart. I used to like I him was too. so sad. I don't know why really you guys was. like Rishi Kapoor. He's a nice No, man. like Kabhi, like like his I know, younger he's days. very good movies back then. He was hilarious. I thought he was an amazing actor. He's a very good actor. He was good at very comedy. good actor. Yeah. He was an amazing actor till his Yeah. last film. Actually, he's very But incredible. Farah, the thing is that he used to always wear those crazy sweaters and those crazy Those dress are pants. the best sweaters. What are you talking about? And those yeah. weird dress do pants. you guys know and- what I want? I originally, seriously, I want that sweater in the movie Kabhi Kabhi, in the song that he's. Oh, that was good. You know the song that I'm- he's doing when he's on the Tere Jhula? chere mein- No, that not that one. No, Not that one. Yeah, the other one. Yeah, I know what you're talking about. You know what I'm talking That's the about, same right? one, right? No, he was wearing this sweater, and it was like a Nintendo-like sweater. It was really cool. I want that sweater. I till this day want the sweater. No, that's I know which one you're talking about. And even in Chandni, he wore a bunch of those crazy wool. I don't woolen. care. His Those are sweaters like were those amazing. ugly Christmas sweaters, man. That's what they हाँ, look वो भी like, man. वो भी पहनता था. He was good. But he always had the same hairstyle. Yeah, I couldn't weird ass believe- mullet. Sri Devi died. Yeah. Oh, that was. Now we're very- getting on topic. I didn't believe. I thought it was a rumor. I was like, nope, that's not true. That didn't happen. I don't believe you. Yeah. And unfortunately, it was true. Yeah, it was That true. was very heartbreaking. And did she die or was she killed? She died. She died. I mean, she's gone now. But I was watching Chandni maybe मेरा ख्याल 1 साल हो गया. And while I was watching that movie, it dawned on me that all three main actors They're all are gone. gone. And untimely deaths, I guess, for Yeah. especially Sri Devi. Yeah. Rishi Kapoor, to chalo, he was sick for a bit, and so was
Vinod Khanna, but they weren't that old. Yeah, Vinod Khanna had cancer. Yeah, he had cancer. But so did Rishi Kapoor. But they were still not that old. Yeah, they No, weren't, man. no. They went well before their well time. before their time. But the good thing is, this is so bad to say, not a good thing, but they didn't overstay their stay. Yeah. You know, there's some actors that come out there and they just keep coming into the movies and nobody wants to see them anymore. But Vinod Khanna and Rishi Kapoor, in the worst way, of course, but you know, they left at their peak. They left when they were, you know, dignified and they had their integrity. So. Yeah. But even as like old actors, they still did really good performances. That's what I'm getting at. Like as That's in, what I'm for saying. example, Vinod Khanna did that movie with Salman Khan. What was it called? Oh, the where he old played one. his father. I think it's a very old one, right? The 90s. No. नहीं अभी थोड़े दिन पहले आई थी. Was it- Oh, Dabang. Yeah, it was Dabang. He Dabang. played his father. Yeah. You know, he played a good role He for did. his age. He played very And- good with Shah Rukh. and He played Rishi Shah Rukh's dad Kapoor- too. Rishi Kapoor did a role with, I think was it with Amitabh, where he Amitabh, played yeah. an older gentleman as well. Like Oh, Yeah. 102 older than not his out. older than his 102 age. not out. Yeah, older than Yeah. his age. So I mean, as an actor, I think that you can play any role that you fit into pretty Yeah. much, and you do a good job. Especially with It's these true. veteran actors, they were really good. I honestly, Sri Devi could have done so much. I think she was coming back. She was. She And was. She And could I'd like have to been think- doing so many more films at this Oh, moment, for but sure. unfortunately, but you know, her girls are doing a good job too right now. They're both. But they're both in they'll never movies. match They'll up to never her be- caliber No. They'll or never be Sri her Devi, prowess no. as an actress. But मैं समझता हूँ कि all three of these the actors we're talking about right now, Vinod Khanna, Rishi, and Sri Devi, all three of them were amazing at what they did, but they were slightly underrated for what they. I think they deserved a lot more 100%. respect and Appreciation, kudos yeah. and appreciation than they actually got. Yeah. Like Those I two think stuff Rishi was- Kapoor didn't get. I mean, think about those 70s movies that he was in. He was in one blockbuster after another, Yeah. man. No, he You was know, with pretty the Kavi amazing. Kabis, with the Bobbies, and Ah. Yeah, yeah. Your acting abilities are Amar this, yeah. Anthony, like Amar they were, Akbar I don't know if you guys They were remember incredible. watching Koj. I remember That Coach. last scene he did Yeah. where he finally admits that he's killed his That's wife. killed his that wife, was yeah. amazing. Yeah, it's And Cars. apparently he did that in one Cars shot. was a very good Cars, movie oh too. yeah. Oh my what a goodness. huge movie that was. I'm so- telling you, Rishi Kapoor was one of my favorite actors. He was And underrated, When he that's for passed, sure. him and Sri Devi, both of them, like they were very close to my heart, both of them. Yeah. Yeah. And almost equally, like Sri Devi, my favorite film of hers was Jalbaz. Oh yeah. I Oh, love that she was movie. amazing in that. She's man. incredible at actors Comedy. like that. I don't think they even exist anymore. No. And the Now I'm dancing. gonna that say kind of something- scope that they had. I'm that going to they ask you brought in. something, Farah and Abdullah, that's controversial because during Sri Devi's reign, Madhuri started taking over and she started getting the rise Yeah. in the late 80s, early 90s. So would you say that, you know, we can all love Sri Devi on a personal level, you know, that's something that's personal to us, but Madhuri Dixit basically reigned Bollywood. She was the queen of Bollywood while she was at her peak. Is that true for you too, Farah, or no? No, nobody Okay. can beat Sri Devi for me in Wow. acting. Look skills at and Abdullah's face. He's dancing. not very comfortable about that, in- man. I'm not gonna say like anything. she was a better dancer. She was a better What? actress. Who was? Definitely, Madhuri, Sri right? Devi. No, she's saying Sri Devi's a better dancer than She Madhuri? definitely is, for sure. I don't know. Trust me, I know that skill, maybe and I'm telling technically, you, she in was much technical- better. as a Kathak, technical like, dancer, yeah, but uh, Madhuri's a better dancer. Madhuri, yeah. Not to me. And not only Madhuri was a better dancer, she's still a better dancer right now, I think but she she was can also more still beautiful. dance than- better than any of the actresses that have come after her or even before her. I Who? agree with that. Madhuri. No, I And I'm not talking Sri about Devi not can talking beat about her, you yeah. know the actual technical moves but that woman has rhythm like nobody else. And does. she has a certain grace and style when she No, speaks. we're not saying that she But- doesn't, but but, Sri I'm saying Devi- if you Sri- compare the two, yeah, but I Farah, still think Sri Devi Sri was. Devi didn't Sri have Devi is those. Zabardast hai. There's a movie I think Chalbaz mein tha na where she played the double role. Yes. Yeah. There's the more timid girl Yeah. she played. Yes. She does this amazing dance number. Oh, She goes yeah. crazy Goes and lets nuts. loose. Oh Yeah. my Two of them, god! yeah, I in used that to movie. get goosebumps watching Yeah, that. no, I used to. I she was amazing, man, and a lot of her dances. I mean, look at the dances she had in Chandni or in Lamhe, for Well, God's sakes. You know what? Whatever the case may be, it's unfortunately we lost some incredible 100%. Actors, veteran Three amazing actors, actors. Yes. who nobody can match. Not now. Can I you don't guys they think can. of a movie where you had 3 major stars or 4 major stars who are no longer here now? I mean, there would be Well, movies if you're you, talking In our about- time. oh, in our time, yeah, no. I think it'd be hard that's to one find. of But the- and a classic like that,
I don't think so. I don't think so. Yeah. So Even if you look at Mark Anthony, so we have Parveen Bobby's gone. Yeah. And Rishi Kapoor is gone. Who's gone? And the rest of them are still here, though. Vinod Khanna is gone. Vinod Vinod Khanna, Khanna was Vinod gone. Khanna was in, yes. Right. Mark So Anthony, he's gone, the gone. three of them. But there's still Shabana Azmi still Shabana, here. Zeenat May Aman. these people have long lives. You know, Yeah. you know what they say, that the people who go early, they're God's people. Yep. Or they've just been stressed out of their minds and the Or world that. took over. Yeah. They couldn't handle the stress. Anyhow, that's all we have time for today. But let's take a moment to honor the three souls, the three Yeah. amazing actors, Yep. personas. Yeah. तो अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे, and Jannat they al-Firdaus. will be remembered for a very, very long time, especially our generation and even our younger generation. Their talent was unmatched for Yeah. sure. So Without question. Without So question. Nazreen, thank you for watching our show once again. Domastani, we will be back, as Arnold Schwarzenegger once said. Oh, you didn't say it once. You said it Yeah. millions of times. I still think Madhuri's better, man. no. All right, we'll see you next week. I do. I'm sorry.